भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, जहां हर रंग, हर सुर, हर धड़कन में बसती है संस्कृति, जहां हर राग में इतिहास गूंजता है, हर नृत्य में दर्शन झलकता है और विरासत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। IGNCA पेश करता है संस्कृति यात्रा, भारत की मूर्त और अमूर्त धरोहरों का अद्भुत सफर। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं हमारा कल्चरल शो संस्कृति यात्रा। आज के अपने पहले सेगमेंट विशेष में हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी जगह की यात्रा पर जहां सदियों पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स में हमारी हिस्ट्री, फिलॉसफी, साइंस और कल्चर की रिच हेरिटेज सुरक्षित है। भारत का एंशिएंट नॉलेज सिस्टम ग्रंथों के अलावा दुर्लभ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी संरक्षित है, जिन्होंने लंबे यात्रा की समय के साथ और इसे तय करते हुए हमारी बौद्धिक विरासत को जीवित रखा। दक्षिण भारत के सांस्कृतिक नगर चेन्नई में स्थित गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी में पाम लीफ और कागज पर लिखी लगभग 70,000 से ज्यादा दुर्लभ पांडुलिपियां यानी रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रिजर्व्ड हैं। वहीं कुप्पुस्वामी शास्त्री रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्राचीन भारतीय दर्शन, चिकित्सा विज्ञान और शास्त्रीय साहित्य से संबंधित अनेक दुर्लभ पांडुलिपियां संरक्षित हैं। तो आइए अपने विशेष सेगमेंट में देखते हैं फिल्म विजडम फ्रोजन इन टाइम इन सर्च ऑफ ट्रेजर, चेन्नई के कुछ अंश। The tides of time come back again and again on the shores of Chennai, erstwhile Madras. Civilization moves on within the socio-religious framework of the society. Towering silhouettes of temple domes to the weaving of garlands makes a complete cycle of time. Devout flock around religious corridors and carry with them the deepest shraddha, which besmears the minds of all. Tradition continues as modernity and Vedic belief systems survive and walk hand in hand. The belief system of the past are enshrined in the minds of scholars, and the knowledge is extended further through oral and textual traditions. The tradition of carrying Utsav Murti with tremendous dedication of devoutes brings to the fore that sacredness has weaved a fabric where icons and human beings are merged together in a celestial celebration. Tiruvallur, the stalwart of another time, whose cultural wisdom through manuscripts remains a frozen icon and inspiration as well. The knowledge pervades the modernity, yet the cultural continuum of ancient wisdom is upkept in the Government Oriental Manuscripts Library, which is a treasure trove today. Manuscripts are an Indian gold mine of knowledge. The heritage of manuscripts is in vogue for over several millennia. Manuscripts vary in shape, size, form, and material, but all of them carry the wisdom and realization of Indian antiquity. Government Oriental Manuscripts Library in Chennai, which started in 1869 as full-fledged library, has three great collections, namely the Mackenzie Collection, who collected numerous material from 1783 till his death in 1821. The other collections are the East India House Collection and the C.P. Brown Collection.
Government Oriental Manuscripts Library, Chennai, has more than 70,000 rare manuscripts of different languages and scripts, namely Tamil, Sanskrit, Telugu, Kannada, Marathi, Urdu, Arabic, Persian, and other languages. The manuscripts are on various subjects of intellectual delving, and most of them are palm leaf and paper manuscripts. While leafing through the papers of manuscripts, one encounters various subjects dealt with meticulous details. Some of the subjects we encountered here are manuscripts on Ayurveda, Siddha, and Unani school of medicines. Other titles which would lure any scholar are Veda, Jyotish Shastra, Mantra, Shilpa Shastra, Vastukala, Sahitya, Bhasha, and many recordings of local history. The multicolored Ganesha manuscript not only show us the aesthetics but codifies mantra. Along with one finds the calendar stating auspicious and inauspicious time by means of Rahu Kala and Gulika Kala. Rudraksha remains a powerful symbolism of Shaivites. We encounter yet another Shaivite symbol, the Linga. Yes, we are talking about manuscripts in the shape of Shiva Linga, depicting the innovativeness of the bygone era. Now we see the Sulini Mantra, the Tantra manuscript, which perhaps forms the shape of yantra, linking the form and the content. Ancient scholars delved beyond the medicine and contemplated on human anatomy with the concept of signs and symptoms. How sporting our ancestors were is seen through the rule game book of chess. Our camera team could find a manuscript in the science of vegetation. Interestingly, vegetable colors were used on its cover. Manuscripts sometimes had wooden cover and sometimes even metal. Safeguarding the manuscripts remained the primary motive. As we proceed further, we find the Telugu English thesaurus, which not only enhances the word power, but provides us with an avenue on the multiplicity of the usage. The journey of manuscripts envelopes varied materials like the bark of a tree, copper plates, cloth, and even leather, which is processed before using as a material for writing the text. Now we move on to the Madras University, Department of Sanskrit, where scholars have undertaken the Herculean task of creating Catalogus Catalogorum, which comprehensively provides entry points to various works and authors. Under this program, some 400 catalogues from all over the country and thousands of other materials are being documented under the program of Catalogus Catalogorum. Manuscripts are heritage in continuum, and the treasures of ancient times are in the safe hands. The icon of Thiruvalluvar has been inspiring scholars for over 2 millennia, just as a reminder of time. Beneath his feet, we recollect that he has written Tirukural, which consists of 1330 couplets on the philosophy of life. This remains a strong punctuation of literary tradition of our country. It seems like every young tide comes and touches his feet to feel the pulses of our heritage days, which are being protected in the form of manuscripts. We are now at the doorstep of the Kuppuswamy Sastry Research Institute, which was founded in 1944 as a memorial to Mahamahopadhyay Professor S. Kuppuswamy Sastry, a reputed scholar of eminence.
He was rightly acclaimed as the founder of South Indian Sanskrit research. This institute remains a hyphenated statement which upholds the ancient wisdom of books and manuscripts. The Kuppuswamy Shastri Research Institute remains a paradise for researchers. Under one roof, one gets access to the rare published books as well as the latest publications. Thousands of manuscripts housed in this institute are the treasure trove of India. The collection of manuscripts encompass vast subjects of ancient Indian philosophy, medicine, and tantra as well. The collection of these heritage manuscripts remains a tough job for the researchers of Kuppuswamy Shastri Research Institute. However, under the able guidance of V.S. Srinivas Shastri, former President of India Dr. S. Radhakrishnan, and Professor Hiriyanna and others, this Herculean task was made possible as the researchers would wander from door to door to collect manuscripts from houses, mutts, and even temples, where this heritage was merely an object of veneration and worship, and those were facing the neglect of time. However, with the constant and persuasive effort by researchers, these manuscripts are not only treated, conserved, but also intellectually fathomed for the wider dissemination of the ancient knowledge. The Vedic oral tradition was transferred into textual tradition some 600 years ago. This Samaveda manuscript deals in the methodology and phonetics apart from various types of chanting punctuations. The Tantra manuscript deals with physical and mental healing, and human problems are addressed through rituals which are encoded in this manuscript. This unique manuscript uses both Sanskrit and Tamil, which is known as Mani Pravada style. This manuscript deals with the supremacy of Lord Vishnu. Nutrindadi Ramayana consists of 100 verses. It's very interesting to note, like in Antakshari, the last letter of the first line becomes the first letter of the second line. For example, a line ends with a sa, so the next line starts with sa itself. The olden wisdom of Shakti worship is recorded here in ancient Granthalipi, which bridges many millennia. In the olden days, life and religion remained a unified affair. Even for diseases, there were concepts of particular god rituals and yantras. The healing was an inward affair. In the Grantha script, we find a commentary on the Bhagavad Gita. Block making in earlier days was invoked before the advent of the printing process. This manuscript deals with the Advaita Vedanta. The light of the ancient knowledge traversed through millennia under the enlightened guidance from world-renowned scholars. The knowledge continues to flow by. The textual tradition of manuscripts remains a bridge to the ancient oral tradition. Today, the cultural continuum of chanting as well as reading continues. Yet the knowledge now dates with neo-technology. Yes, we are talking about digitalization of ancient knowledge systems and upkeeping them for the posterity. Manuscripts will continue to guide our civilization for many more millennia. मैन्युस्क्रिप्ट्स की ये हेरिटेज हमें हमारे पास से जोड़ते हुए फ्यूचर के लिए भी एक गाइड का काम करती है। बढ़ते हैं आगे अगले सेगमेंट संवाद की ओर, जहां मुलाकात होगी एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने जर्नलिज्म को केवल एक प्रोफेशन नहीं बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी के रूप में लिया। आज के हमारे विशेष अतिथि हैं सुप्रसिद्ध पत्रकार साहित्यकार जवाहरलाल कौल।
जम्मू कश्मीर में जन्मे जवाहरलाल कौल जी ने एजुकेशन से जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा और अपने टैलेंट और कमिटमेंट के बल पर हिंदी पत्रकारिता में अपने लिए स्थान बनाया। उन्होंने मल्टीलिंगुअल न्यूज एजेंसी हिंदुस्तान समाचार से अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत की और बाद में प्रेस्टिजियस न्यूज वीकली दिनमान से जुड़े। लगभग 2 दशकों तक वहां काम करने के बाद उन्होंने जनसत्ता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी जर्नलिज्म की निरंतर सेवा के लिए उन्हें 2016 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो आइए संवाद में सुनते हैं पद्मश्री जवाहरलाल कौल जी के विचार, उनके अनुभव और पत्रकारिता के प्रति उनका दृष्टिकोण। जब आपने कश्मीर से ये तय किया कि आप पत्रकार बनने दिल्ली आएंगे, तब आपको परिवार में या किसी ने, आसपास लोगों ने कहा होगा कि भाई यहाँ अच्छी खासी नौकरी है, टीचर हो और उसके बाद जा रहे हो, क्योंकि पत्रकारिता उस समय ग्लैमर भी नहीं था, उस समय बहुत पैसा भी शायद नहीं था और पत्रकारिता को ऐसा कोई बहुत इस तरह से शायद नहीं देखा जाता कि बड़ी प्रतिष्ठित फील्ड है, या किस तरह का क्या नज़रिया था उस समय लोगों का? आप ठीक कह रहे हैं कि उस ज़माने में पत्रकारिता को ग्लैमर से नहीं जोड़ा जाता था। साधारण पत्रकार एक साधारण क्लार्क से ज़्यादा नहीं कमाता था, बल्कि कभी ऐसे बहुत से स्तर थे जहां क्लार्क ज़्यादा कमा सकता था। इसलिए पत्रकारिता में कोई आकर्षण नहीं था, उस तरह का आकर्षण, आर्थिक आकर्षण नहीं था। अपनी इच्छा से, आकांक्षा से आदमी अगर पत्रकार बनना चाहता था तो इसलिए कि उसे लगता था कि ये एक माध्यम है, ये एक मीडियम है जिसके ज़रिए वो कुछ देश के लिए या समाज के लिए या उस वर्ग के लिए जहाँ उनसे जन्म हुआ है उसके लिए कुछ कर सके। इसके माध्यम से उसे लगता था कि वो अपनी बात बिना बेखटके, बिना किसी डर के कह सकता है, बोल सकता है। ये सब बातें अगर आपके मन में हैं, आपके मन में थी तभी आप पत्रकारिता, अपने घर के माहौल को छोड़कर दूर दराज के इलाकों में पत्रकारिता करने की इच्छा रखते थे। यही मेरे साथ भी था। ऐसा नहीं है कि कश्मीर में रहकर मैं पत्रकारिता से मेरा कोई संबंध नहीं था। मेरे परिवार में पढ़ने लिखने वाले लोगों की एक श्रृंखला थी और पत्रिकाएँ तो आती थी। हमने एक संस्था भी शुरू की थी जिसमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी, डोगरी, ये सब के लेखक, कवि मिलते थे और अपने रचनाओं का आदान प्रदान करते थे, उनके बारे में चर्चा करते थे। तो एक पत्रिका भी हम निकालते थे। कुल मिलाकर इस इच्छा तो पहले से थी और संबंध भी, जो देश के दूसरी जगहों से लेखक लोग कश्मीर आते थे, उनसे मुलाकात हम करते थे, उनकी बैठकें किया करते थे, तो संबंध भी थे। इसलिए भी ये इच्छा मन में थी, ये विश्वास मन में था कि अगर मैं यहाँ से निकल गया तो मैं वापस खाली हाथ नहीं आऊँगा। मैं और यही ऐसा हुआ जब मेरे एक मित्र ने मुझे दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुलाकर मुझे एक समाचार एजेंसी में ट्रेनी के रूप में। लेकिन परिवार में, मैं फिर जानना चाहता हूँ, परिवार में क्या रिएक्शन हुआ? मेरे परिवार में मैं उस वक्त में शादीशुदा था और मेरे बच्चे का बाप भी था। लेकिन परिवार बड़ा था, मेरे पिता भी थे और मेरे बड़े भाई थे, छोटे भाई भी थे। तो एक उस परिवार में वो कठिनाई से तो जीना था ही, लेकिन इतना संभव था कि मेरे बिना भी वो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, उनका लालन पालन हो सकता है। इसलिए ये मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि अगर आप ये बात मेरी पत्नी से पूछे हो तो वो कोई दूसरी बात कहे, वो ये कह सकती है कि मेरे लिए कष्ट और त्रासदी की बात रही हो।
लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मुझे अपनी आकांक्षाओं के हिसाब से अपना व्यवसाय चुनना था तो मुझे कुछ न ऐसा करना ही था। अभी आपने सुना प्रसिद्ध पत्रकार पद्मश्री जवाहरलाल कौल को। बढ़ते हैं आगे अगले सेगमेंट माटी सुगंध की ओर। भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक प्रोजेक्ट चला रहा है, मेरा गांव मेरी धरोहर, जिसका एम है भारत के गांव की कल्चरल मैपिंग करना, ताकि गांव की जो विरासत है उसे डॉक्यूमेंट किया जा सके। और इसी क्रम में आज हमारी संस्कृति यात्रा हमें लेकर चल रही है मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में स्थित मावलीनोंग गांव की ओर। ये गांव अपनी साफ सफाई के लिए जाना जाता है। ज्यादातर आबादी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। गांव में बीटल लीफ, बीटल नट, बे लीफ, पाइनएप्पल, ऑरेंज की खेती की जाती है। मावलीनोंग गांव में नोहवेट लिविंग रूट ब्रिज भी है, जिसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। तो आइए चलते हैं मावलीनोंग गांव की ओर। मावलीनोंग उत्तर पूर्व भारत में मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले का एक गांव है। मावलीनोंग गांव में सभी ग्रामीण स्वच्छता से जुड़े हुए हैं। यहाँ आपको हर जगह बांस के कूड़ेदान दिखेंगे और प्लास्टिक की थैलियां यहाँ पर प्रतिबंध हैं। गांव के खेतों में बोई जाने वाली मुख्य फसलें पान, सुपारी, तेजपत्ता, अनानास, संतरा है। इस गांव में आप 2 व्यू पॉइंट देख सकते हैं। एक है स्काई व्यू पॉइंट या बांग्लादेश व्यू पॉइंट और दूसरा ट्री हाउस व्यू पॉइंट है। इन बांस की संरचनाओं के माध्यम से आप बांग्लादेश के प्रतीक होने वाले अंतहीन मैदानों को देख सकते हैं, जो बहुत लुभावने दृश्य हैं। गांव के पास एक बहुत प्राचीन संतुलन चट्टान है, जहां खासी लोग प्रार्थना करते हैं। माओ का अर्थ है स्टोन और लिनोंग का अर्थ है छेद। इस गांव में छेद वाले कई पत्थर हैं और लोग आज भी रॉक होल्स पर पानी डालते हैं। इस गांव में 2 चर्च हैं। एक इपिफेनी का चर्च है और दूसरा प्रेस्बाइटेरियन चर्च है। चर्च ऑफ द इपिफेनी 1 सदी से भी अधिक पुराना है, जो हरे भरे गांव के बीच बसा हुआ है। गांव की महिलाएं जैन सेम और जैनकिर शाह जैसे पारंपरिक कपड़े पहनती हैं। गांव के पुरुष जैन स्पोंग, जैन बो, सिप्टिल और पैंट और शर्ट जैसे पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सजेशंस हमारे लिए अवेलेबल हैं। अगर आपके पास भी अपने गांव, एरिया या फोक ट्रेडिशन से जुड़ी कोई भी वाइटल इन्फॉर्मेशन है, उसे हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.igNCA@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात संसद टीवी पर आज ही के दिन, अगले हफ्ते इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। जाते जाते देखिए हाल ही में हुए कुछ सांस्कृतिक आयोजनों की झलकियां और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आईजीएनसीए और इसके क्षेत्रीय केंद्रों में योगाभ्यास किया गया। इस अवसर पर विभिन्न आयोजनों के तहत आईजीएनसीए और इसके क्षेत्रीय केंद्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया गया। इस अवसर पर आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने नियमित योग अपनाने का आह्वान करते हुए कहा, हम सब निरंतर स्वस्थ रहें। हम सब की जो जीवन शैली है उसमें अलग अलग तरह की चुनौतियां आ रही हैं। तनाव है, हमारी शरीर का शैथिल्य है, हम सब लोगों की जो बहुत ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बैठने की आदत के कारण हमारा जो एक शारीरिक संचलन, फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए, वो नहीं होती। तो इन सब के बीच में अगर हम लोग कम से कम आधा घंटा 45 मिनट योग को देंगे तो निरंतर हम स्वस्थ रहेंगे। योगाभ्यास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक अन्य कार्यक्रम के अंतर्गत आईजीएनसीए के कला निधि प्रभाग ने योग की पांडुलिपियां, भारत की शाश्वत ज्ञान परंपरा विषय पर प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर योग से जुड़ी दुर्लभ पांडुलिपियों के माध्यम से भारत की प्राचीन ज्ञान विरासत के विविध आयामों पर सार्थक विमर्श हुआ। कार्यक्रम में आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा,
कि योग भारत की ज्ञान परंपरा का जीवंत स्वरूप है। वहीं केंद्र के डीन और कलानिधि प्रभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद्र गौड़ ने पांडुलिपियों को भारतीय बौद्धिक विरासत का अमूल्य स्रोत बताया। कार्यक्रम में प्रोफेसर मार्कंडेय नाथ तिवारी ने योग को शरीर, मन और चेतना के संतुलन का वैज्ञानिक मार्ग बताया। वहीं इस अवसर पर उपस्थित डॉक्टर विनय कुमार ठाकुर ने योग को दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने पर बल दिया, जबकि डॉक्टर शिवादित्य पुरोहित ने योग की वैश्विक स्वीकार्यता को उसके सार्वभौमिक मूल्यों का प्रमाण बताया। आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी द्वारा 8 से 24 जून 2026 तक NEP 2020 आधारित इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित हुआ। भारतीय ज्ञान परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और पौराणिक विश्वकोश विषय पर केंद्रित इस शोध आधारित कार्यक्रम में वाराणसी के विभिन्न संस्थानों के 125 से ज्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी ने पुराणों और भारतीय शास्त्र परंपरा के महत्व पर प्रकाश डाला। आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र त्रिशूर द्वारा मणनूल थुल्लर कलारी के सहयोग से योगा कलारी समन्वय, मूवमेंट, माइंड और मार्शल विजडम का सामंजस्य विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में योग और कलरी पयट्टू के गहरे संबंधों को व्याख्यान, अभ्यास सत्रों और प्रदर्शनों के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए श्वास नियंत्रण, संतुलन और समग्र स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया। कर्नाटक संगीत की प्रस्तुति के साथ ही इस कार्यक्रम का समापन हुआ।